Hello everyone, I'm Dr. Raman. Today we will discuss about the measurement of inbreeding coefficient by the path method. Okay. Uh, for the overall genetic improvement of the livestock species, okay, we just have two major choices. One is the selection method and other is the mating system method. Okay, we do genetic improvement using these two major techniques. Okay, either we do the selection or we do the use of mating systems. Okay, with the combination of these two systems we can just constitute a breeding plan for a particular organisms. Okay, so overall better genetic improvement, a combination of these both selection and mating systems, they are used. Okay, the selection, it is mainly based on the genetic superiority of the animal. Okay, we choose, we select these particular genetic superior animals. Okay, using this different selection techniques, and this selection mainly utilize the additive genetic component of that particular genetic variants. Okay, but if we talk about the mating systems, that is the choice of mate to produce the progeny. Okay, means which mates we are using to produce the progeny of the next generation. Okay, uh, this mainly use the non-additive genetic component of the genetic variants. Okay, and if we classify this mating system, this is of mainly two types. One is random mating, another is the non-random type of mating. Okay, the random mating, it is a kind of very simple type of mating in which each and every individual has what you say, equal chances of mating. Okay, and they produce their offsprings. It is a kind of unplanned mating. Okay, but if we talk about the planned mating or other is the non-random mating, this is mainly we classify it uh, into the inbreeding and outbreeding. Okay, inbreeding and outbreeding, that is this classification is based on the relationship, okay, of the individuals. If the individuals they are closely related, then it is the inbreeding. If they are not closely related, then it is the outbreeding. Okay, so the word inbreeding, okay, I had discussed this uh, all just to give you basic idea what is inbreeding. Okay, inbreeding, it is a kind of mating system. Okay, not a selection method. Selection methods, they are different. Mating systems, they are different. Okay, so inbreeding and outbreeding, these are kind of mating system. Okay, based on the relationship of the individuals. Okay, so we'll start with our today's topic, that is inbreeding. Inbreeding, it is the mating of relatives or mating of individuals which are more closely related than the average of population. हमारी पूरी पॉपुलेशन के अंदर तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि या तो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या वो आपस में थोड़ी बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, तो दैट इज द इनब्रीडिंग. ओके, उनकी मेटिंग करवाना, दैट इज द इनब्रीडिंग. द अमाउंट ऑफ इनब्रीडिंग इन अ गिवन इंडिविजुअल इज मेजर्ड बाय इनब्रीडिंग कोफिशिएंट. ठीक है, जो इनब्रीडिंग है वो हम मेनली इनब्रीडिंग कोफिशिएंट के हिसाब से निकालते हैं. दिस इज एफ एक्स, वेयर एक्स इज द इंडिविजुअल जिसकी हमने इनब्रीडिंग निकालनी. ठीक है, और जो तुम्हारा and it is defined as probability that two genes are at any locus in an individual, they are identical by descent. ठीक है, this type of this definition, it is given by a French geneticist, that is Melcott. Okay,
According to this particular definition, what you say, uh, this identical by descent. Okay, these are the kind of genes which are present in their ancestors. तो वही जीन्स जो एंसेस्टर के अंदर हैं वही जीन्स नेक्स्ट प्रोजेनी में आ जाएंगे, दैट इज द आइडेंटिकल बाय डिसेंट. ओके, अगर हम एक लोकस की बात करते हैं वहां पे वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ जीन कॉम्बिनेशन. वन आर द आइडेंटिकल बाय डिसेंट्स एंड अदर आर आइडेंटिकल बाय काइंड और स्टेट. ओके, काइंड और स्टेट वाले जो हैं दे आर द काइंड ऑफ एलील्स जिनका फंक्शन सेम है, ठीक है, बट वो कॉमन एंसेस्टर से नहीं है. ठीक है, यहाँ पे इन अवर डेफिनेशन वी हैव आइडेंटिकल बाय डिसेंट. ठीक है, जो आइडेंटिकल बाय काइंड है या आइडेंटिकल बाय स्टेट है, ठीक है, वो इसमें नहीं आते एलील्स. हम सिर्फ वही एलील्स की बात करेंगे जो कि आइडेंटिकल बाय डिसेंट. ठीक है, आइडेंटिकल बाय डिसेंट मतलब वो जीन्स जो कि एंसेस्टर्स के अंदर भी हैं और वही जीन्स हमारी नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर भी हैं. ठीक है, दैट आर द काइंड ऑफ जीन्स विच आर आइडेंटिकल बाय डिसेंट. और इस वैल्यू को, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट को हम एफ क्यों लिखते हैं? एफ इज द फिक्सेशन. ठीक है, एफ सिग्निफाइज द फिक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, the fixation of the genes in an individual. ठीक है, that a particular allele it is being fixed in the population. उसके पेरेंट्स में भी वही था, उसके एंसेस्टर्स में भी वही था, तो that gene is fixed or that allele is fixed at a particular locus, so that is F. ठीक है, F means fixed. ठीक है, जो तुम्हारी पाथ मेथड है, ठीक है, दिस पाथ मेथड इट इज गिवन बाय द सिविल राइट. ठीक है, दिस पाथ मेथड इसकी हम बात कर रहे हैं, दिस मेथड इज गिवन बाय द सिविल राइट. और ये जो डेफिनेशन है इट इज गिवन बाय द मेलकॉट. ओके, सिंस द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट इट इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये हम जनरली प्रोबेबिलिटी में इसकी बात करते हैं, तो जो इसकी रेंज है वो 0 से 1 या 0 to 100% हम, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. अगर एक एग्जांपल देके हम बात करें कि इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट इफ इट इज 0.25, that means at an given locus the probability that two genes are identical by descent is 25%. ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि अगर किसी इंडिविजुअल का इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट 0.25 है तो उसके जो 25% ऑफ जीन्स हैं वो उसके एंसेस्टर के जैसा है. ठीक है, या उसके पेरेंट्स के जैसा है. ठीक, 25% ऑफ जीन्स उसके पेरेंट्स जैसे हैं जो कि उसके जिससे वो बना है. ठीक है, तो दिस इज द मेन व्हाट यू से explanation with 0.25. ठीक है, the inbreeding coefficient depend upon the relationship of ancestor or parent. Okay, it can be computed by path method. This path method is also known as the right method क्योंकि ये civil right ने दिया. ठीक है, this requires the finding out the paths taken by identical genes to flow from ancestors to parents in an inbred individual. ठीक है, हम क्या करते हैं, वी जस्ट सिलेक्ट द पाथ्स कि किस पाथ से ये जीन जो है वो फ्लो किया फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स टू द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल और उससे नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच गए. ठीक है, जो फॉर्मूला है दैट इज एफ एक्स सिग्मा हाफ n1 प्लस n2 प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस एफ सी ए पी. ओके, दिस इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ फॉर्मूला. कुछ लोग अलग तरीके से इसको लिखते हैं. ठीक है, बट दिस इज दिस फॉर्मूला इज विच यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, एफ 1/2 सिग्मा 1/2 n1 प्लस n2 प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस एफ सी ए पी.
ठीक है। अब CAP क्या है? इट इज द कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। दैट इज इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द कॉमन एंसेस्टर। FCAP मींस इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द कॉमन एंसेस्टर। FX इज द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ इंडिविजुअल X, जिसका हमने इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है। N1 इज नंबर ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग sire to the X, number of N2 is number of paths connecting dam to the X, ठीक है। sire और dam किन किन पाथ से कनेक्टेड है, कितना नंबर है, दैट इज N1 and N2 प्लस 1, ठीक है। दैट विल ओवरऑल गिव अस द वैल्यू ऑफ FX, ठीक है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ पाथ्स की, ठीक है, N1 प्लस N2 की वैल्यू अगर हम 1 है, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू रहेगी 0.5, ठीक है। ये हाफ की पावर n, ठीक है। n इज N1 प्लस N2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली हुई है। तो ये जो तुम देखोगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पाथ्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तुम्हारी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो जितने ज्यादा पाथ आ जाएंगे उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितना एनिमल क्लोजली रिलेटेड होगा, ठीक है, नंबर ऑफ पाथ्स की बात है, वन इंडिविजुअल A टू B टू C, अगर अब बीच में दो हैं, ठीक है, जस्ट एक बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, अगर बीच में दो हैं तो अपने आप ही जो इनब्रीडिंग होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। अगर बीच में नंबर ऑफ पाथ्स मीन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बीच में ज्यादा होंगे, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर के और तुम्हारे एक्स इंडिविजुअल के, तो अपने आप ही जो उसकी एन वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो एन वैल्यू अगर बढ़ जाएगी उतनी ही तुम्हारी इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। वेरी सिंपल थिंग। स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट यूजिंग द पाथ मेथड, ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स हैं और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ पाथ डायग्राम फ्रॉम द गिवन पेडिग्री, ठीक है। सबसे पहले हमने पाथ डायग्राम बनानी है फ्रॉम अवर गिवन पेडिग्री, ठीक है। पाथ डायग्राम किस तरह से बनानी है वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। सेपरेट, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेपरेट द सायर एंड डैम्स लाइंस फ्रॉम पेडिग्री बाय पुटिंग डॉटेड लाइंस बिटवीन फॉर a better understanding of flow of genes, from ancestors to the individuals, okay. The members of the given pedigree should be assigned letters। किस तरह से लेटर्स देने हैं हमने, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है उसको हम x रखेंगे, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको हम S and D रखेंगे। S is sire and D is dam, okay। Now draw the arrows from S to X and D to X, ठीक है। और जो arrows रहेंगे that will be pointed towards the X, ठीक है, X की तरफ होने चाहिए। Draw arrows from rest of the members ancestors toward the parents S and D, indicating forward transmission of the genes from parents to offsprings, never in the opposite way, ठीक है। तो हमने क्या रखना है, हमेशा ही जो जीन फ्लो होगा that will be from the ancestors to the individuals, ठीक है। Not that each member of pedigree appears only once in a complete path diagram, ठीक है। और जो तुम्हारा मेंबर है वो एक बार ही आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। लोकेटिंग कॉमन एंसेस्टर्स फ्रॉम पेडिग्री चार्ट और पाथ डायग्राम, ठीक है। पहला है हमने जो तुम्हारे इंडिविजुअल्स है उनको हमने लेटर्स दे देने हैं। लेटर्स देने के बाद हम एरोस लगाएंगे फ्रॉम S to D, S to X एंड D to X, और उसके बाद एंसेस्टर से हम एरो लगाते चलेंगे टू दिस S and D, ठीक है। नेक्स्ट इज लोकेटिंग कॉमन एंसेस्टर्स फ्रॉम पेडिग्री चार्ट्स और पाथ डायग्राम्स, ठीक है। किस तरह से करना है? फॉर इनब्रीडिंग कैलकुलेशन द कॉमन एंसेस्टर इज वन दैट इज कॉमन टू बोथ सायर एंड डैम, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर वही होगा जो कि सायर और डैम दोनों के बीच में कॉमन होगा, ठीक है। ये लाइंस जो हैं अभी मैं तुम्हें पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को जब हम करेंगे
then you'll have डिटेल्ड आइडिया अबाउट दीज लाइंस भी इनमें क्या लिखा हुआ, ठीक है। इनको स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, किस तरह से ये करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट एक बार इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। इंडिविजुअल अपीयर ऑन बोथ साइड ऑफ द पेडिग्री चार्ट विल बी द कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। अब जो पेडिग्री चार्ट में दोनों साइड होगा, सहार वाली साइड भी होगा और डैम वाली साइड भी होगा, तो वो तुम्हारा कॉमन एंसेस्टर रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए से जीन सहार को भी जा रहे हैं, डैम में भी जा रहे हैं, तो तुम्हारा ए होगा कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। तो बोथ साइड में जो रहेगा दैट इज द कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर इज फाउंड टू बी इनब्रेड व्हेन अनदर कॉमन एंसेस्टर इन इट्स ओन पेडिग्री, ठीक है। अभी ये क्या है कि एक इंडिविजुअल कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, बट अगर पीछे भी उसके अंदर इनब्रीडिंग चल रही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट उसके अंदर भी होगा, ठीक है। तो वो भी एक कॉमन एंसेस्टर बन जाएगा, ठीक है। When converted into the path diagram, individual from whom two or more than two arrows emerge can be considered as common ancestor, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया जैसे ए से सार में भी जा रहा है, ए से डैम में भी जा रहा है, तो उस पॉइंट उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से वी कैन से कि दो एरो निकल रहे हैं, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज द कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। Sometimes an individual is considered to be its own common ancestor when separated from itself by zero generation, ठीक है। That is the special case. Step 3 is the counting the path through the common ancestor. अब उन कॉमन एंसेस्टर से होते हुए जितने पाथ जा रहे हैं सायर टू डैम, ठीक है, वो कितने हैं, ठीक है, वो हम काउंट करेंगे और उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे एन वैल्यूज, ठीक है। One should start from sire to the common ancestor or back to the dam for getting the path, ठीक है। हमने क्या करना है, सायर से चलना है, सायर, कॉमन एंसेस्टर एंड डैम, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा एक पाथ बनेगा, ठीक है। तो उसके अंदर से हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई एवरी यूनिक नंबर ऑफ पाथ by which identical genes transmitted from a common ancestor to the parents of X, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ इनब्रेड कॉमन एंसेस्टर। अगर हमारा जो कॉमन एंसेस्टर है वो इनब्रेड है तो पहले हम उसका इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। अगर वो फिर हमारे कॉमन एंसेस्टर का हमारे पास एफ सी ए पी आ जाएगा, एफ सी ए पी के बाद वी विल जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। सिंपल है। नाउ विल स्टार्ट विद दिस एग्जांपल, ठीक है। अभी तुम्हें इसका सभी आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या तुम्हें बता रहा था अभी तक, ठीक है। फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द हाफ सिब मेटिंग, ठीक है। हाफ सिब मेटिंग क्या है, हाफ ऑफ द जीन्स और सिंगल कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर अगर सिंगल है तो दैट इज द हाफ सिब मेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो वी हैव थ्री इंडिविजुअल्स ए बी ए एंड सी, ठीक है। चार पेरेंट्स हैं हमारे पास। ए और बी के क्रॉस से वी हैव एस एंड ए एंड सी से वी हैव डी, ठीक है। अब क्या है, ए जो है वो सायर को भी जीन्स दे रहा है और ए जो है डैम को भी जीन्स दे रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास ओवरऑल एक बेसिक बनेगा दैट इज ए बी एंड सी, ठीक है। दे बोथ दीज बोथ, ओके। तो इससे हमें मिल गया ए एंड सी से वी हैव द डैम, ठीक है। ए एंड बी से वी हैव द सायर, ठीक है। तो ए से जीन गए सायर के अंदर, ए से जीन गए डैम के अंदर, ठीक है। तो ए जो है इट इज द कॉमन पेरेंट, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल इफ टू एरोज आर कमिंग दैट मींस दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज द कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। अब इसमें से सिंगल एरो है सायर को, इसमें से सिंगल एरो है टू द डैम सी से, तो
ये कॉमन एंसेस्टर नहीं बनेंगे, तो हमारा जो कॉमन एंसेस्टर सिंगल है दैट इज द ए। ठीक है, तो हमारा एक ही कॉमन एंसेस्टर है दैट इज द ए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। ठीक है, ए है हमारा कॉमन एंसेस्टर। ठीक है। अभी हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला था दैट इज हाफ, ठीक है, एन वन प्लस एन टू प्लस वन ब्रैकेट एफ ए और एफ सी ए पी। ठीक है, जो तुम्हारा कॉमन पेरेंट है प्लस वन। ठीक है, यही फॉर्मूला है ऊपर हमने जो देखा था। ठीक है, अब n1 इज नंबर ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग सायर एंड कॉमन एंसेस्टर। अब सायर और कॉमन एंसेस्टर को कनेक्ट करने वाला भी हमारे पास है सिंगल पाथ वन। ठीक है, सिंगल है, एक ही पाथ है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। एन टू की वैल्यू क्या है, डैम और कॉमन एंसेस्टर को कनेक्ट करने वाला पाथ, ये भी हमारा है वन। ठीक है, और ये है तुम्हारा वन। ठीक है, तो हाफ की पावर वन हाफ पावर वन प्लस वन प्लस वन। ठीक है, एन वन एन टू एंड वन। ठीक है, तीनों वन 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 है। अब मल्टीप्लाइड बाय एफ ए और एफ सी है ना, तो ये क्या है, कॉमन एंसेस्टर का इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट। अब ये कॉमन एंसेस्टर है, ये इनब्रेड नहीं है क्योंकि इसके पीछे की पेडिग्री हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगी दैट विल बी द जीरो। ठीक है, प्लस वन। ठीक है, तो हाफ की पावर हो जाएगी हाफ की पावर हो जाएगी थ्री मल्टीप्लाई बाय वन। ठीक है, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ। हाफ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी दैट इज वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू इज फोर, टू मल्टीप्लाई बाय एट, दिस इज वन बाय एट। ओके, तो ये जो वन बाय एट है दैट इज योर इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट फॉर द हाफ सेल मेटिंग। ओके, हाफ सेल मेटिंग के लिए ये तुम्हारी वैल्यू रहेगी वन बाय एट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जब तुम लोग करोगे यू विल हैव मोर बेटर आइडिया कि किस तरह से इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें वी हैव द सेकंड। ओके, जो सेकंड है वो है तुम्हारा
अगर हम अब इसको डिटेल में देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, ए है, बी है, इससे हमारे पास सायर आया, ठीक। ए और बी को ही हमने फिर से मिट कराया तो उससे हमारा डैम आया, ठीक है। सायर और डैम, अब इन दोनों के पेरेंट जो है वो कॉमन है, ठीक है। सायर भी सेम पेरेंट से आया है और डैम भी सेम पेरेंट से आया है, ठीक है। मतलब इस पेरेंट, इस इंडिविजुअल एक्स के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, एस एंड डी, इन दोनों के पेरेंट सेम है, ठीक है। ऊपर हमने बात की थी कि जो एक सिंगल ए है, ही इज प्रोवाइडिंग जीन्स टू बोथ सायर एंड डैम, बट यहाँ पे ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों ही सायर और डैम के अंदर जीन्स दे रहे हैं। तो इसकी जो हम डायग्राम बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी इसकी, ठीक है। वेयर ए is providing genes to dam and sire, B is providing genes to sire and dam, ठीक है। और sire और dam को जब हमने क्रॉस कराया, उससे हमारे पास इंडिविजुअल x आएगा, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, अब वो किस तरह से करना है हमें, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास यही है, एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ की पावर n1 प्लस n2 प्लस 1 एफ ए प्लस 1, ठीक। फॉर्मूला सेम है ऊपर वाला, ठीक है। अभी पहले हम इंडिविजुअल ए की बात करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट पाथ किस तरह से बनेगा, अब अगर हम इसको अभी हम छोड़ दें, बी को छोड़ दें, ठीक है, तो ये जो पाथ है इट इज जस्ट काइंड ऑफ दिस, ठीक है, हाफ सिप की तरह ही है, ठीक है, जहां पे वी हैव एक्स डी ए एस, ठीक है। तो ये चारों का एक जो पूरा पाथवे है वो इस तरह से, ठीक है। ए इज गिविंग जीन्स टू एस एंड डी प्लस जो एस अपने जीन्स और डी से ये हमारा इंडिविजुअल एक्स आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे हाफ सिप की तरह ही, ठीक है, विद इन अकॉर्डेंस टू द इंडिविजुअल ए, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी वैल्यू थी वैसे ही रहेगी हमारे पास, हाफ, ठीक है, n1 की वैल्यू सायर और कॉमन एंसेस्टर को कनेक्ट करने वाला पाथ 1 1 प्लस डैम और कॉमन एंसेस्टर को पाथ जोड़ने वाला 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर नहीं है, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, वैसे ही है, ठीक है। अब नीचे सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड ऑन इन अकॉर्डेंस टू द इंडिविजुअल बी, ठीक है। अब बी इंडिविजुअल के हिसाब से हम बात करेंगे तो वो है 1/2 1, ठीक है। सिमिलरली सार और कॉमन एंसेस्टर को कनेक्ट करने वाला पाथ 1 प्लस डैम और कॉमन एंसेस्टर को कनेक्ट करने वाला पाथ 1 प्लस 1, ठीक है। एफ बी की वैल्यू कितनी होगी, अब कॉमन एंसेस्टर का इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ये 0 ही है क्योंकि ये कॉमन इनब्रेड नहीं है ये, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। अब हमारा अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल ए, अगर इसको हम कॉमन एंसेस्टर मानते हैं तो हमारे पास 1/8 आता है, अगर बी को हम कॉमन एंसेस्टर मानते हैं तो हमारा 1/8 आता है। बट अकॉर्डिंग टू द एक्स
ये दोनों ही कॉमन एंसेस्टर हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे ऐड, 1/8 प्लस 1/8, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट फॉर द फुल सिप मेटिंग सिस्टम इज 1/4, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना किसी चीज को लेके, ठीक है। जिस तरह से हमने हाफ सिप को किया था, ठीक है, इसी तरह से अगर हम फुल सिप की बात करते हैं, एक फुल सिप इट इज कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सिप्स, ठीक है, टू हाफ सिप सिस्टम्स, ठीक है, एक अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पेरेंट, फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर, एंड सेकंड इज द अकॉर्डिंग टू द सेकंड एंसेस्टर, ठीक है। तो उन दोनों को कंसीडर करेंगे तो एक तुम्हारा हाफ सिप ऊपर से बनेगा, एक हाफ सिप सिस्टम नीचे से बनेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो विल हैव अवर फुल सिप वैल्यू, ठीक है, दैट इज 1/4, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं सायर एंड डॉटर या पेरेंट ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट वी हैव, ठीक है, ऊपर वाला हमने देखा था कि ए एंड बी दे बोथ आर मीटिंग टू हैव सायर, ए एंड बी दे हैड मीटेड एंड दे हैड द डैम। तो सायर और डैम को हमने आपस में मीट कराया, वील हैव द इंडिविजुअल एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, सायर डॉटर में या पेरेंट ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। इसमें नाम से क्लियर है, द मीटिंग इज लाइक कि पेरेंट की मीटिंग होगी विद द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब क्या है, ए एंड बी, ठीक है, ये थे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, इनसे विल हैव, ठीक है, इनका एक सन हुआ दैट इज एस सायर, ठीक है। इस सायर का यूज किया उन्होंने विद द थर्ड इंडिविजुअल टू गेट द डैम, ठीक है, और इस डैम से इन्होंने सायर को मेट करा के विल हैव द एक्स, ठीक है। अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो जो सायर है, ठीक है, दिस सायर इज गिविंग जीन्स टू एक्स एंड डी, ठीक है, दोनों को जीन दे रहा है, ठीक है। सायर एक्स को भी दे रहा है और डैम को भी दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज द जीरो जनरेशन वाला जो स्पेशल केस मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी सायर जो है दैट इज अवर एस, ठीक है, सायर इज एस। अब एस क्या है, इट इज द कॉमन पेरेंट, ठीक है, क्योंकि एस जो है एक्स को भी जीन दे रहा है और डैम को भी जीन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एरो लगेंगे सायर के, और डैम से जीन्स सिर्फ एक्स को जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू द एरोस, एस इज द कॉमन पेरेंट, फॉर्मूला हमारा यही है, एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ पावर n1 प्लस n2 प्लस 1 एफ ए प्लस 1, ठीक है। अब पाथ्स कनेक्टिंग सायर टू द कॉमन एंसेस्टर, n1 इज जीरो क्योंकि सायर ही तुम्हारा कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। तो इसके केस में हाफ, ठीक है, हाफ n1 की वैल्यू होगी जीरो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पेरेंट ही कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। एन टू की वैल्यू क्या है, डैम टू द कॉमन एंसेस्टर 1, ठीक है, दिस इज 1 प्लस 1, ठीक है।
एफ ए क्या है? वो इंडिविजुअल जो कॉमन एंसेस्टर है उसका इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अब इस ये इनब्रेड नहीं है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 + 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो जो तुम्हारी इनब्रीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू है फॉर बोथ पेरेंट ऑफस्प्रिंग एंड फॉर द फुल सिप, दैट इज 1/4। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखनी है कि फॉर फुल सिप मेटिंग इनब्रीडिंग कोफिशिएंट इज 1/4, फॉर साया डॉटर पेरेंट ऑफस्प्रिंग इसके अंदर भी 1/4। अगर हम हाफ सिप की बात करते हैं दैट इज द हाफ ऑफ द फुल सिप, दैट इज 1/8। ठीक है, आई होप तुम्हें इसका थोड़ा आइडिया हो गया होगा इस तरह से है। अभी कॉमन एंसेस्टर वाली एक एग्जांपल आगे है, आई विल जस्ट डू दैट फॉर यू। उसमें थोड़ा तुम्हें कॉमन एंसेस्टर वाले का भी आइडिया हो जाएगा कि उसको हमने किस तरह से करना है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तीनों तुम सॉल्व कर लोगे, हाफ सिप, फुल सिप एंड साया डॉटर। ठीक है, या पेरेंट ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की अगर हम बात करते हैं टू फाइंड आउट द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी हमें एक्स का इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, एक्स का इनब्रीडिंग कोफिशिएंट निकालना है, वो अब किस तरह से निकालना है? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा कोई पेरेंट इनब्रेड तो नहीं है। ठीक है, अब एक्स के पेरेंट क्या हैं? बी और सी। ठीक है, सी तो इनब्रेड नहीं है क्योंकि इसका हमारे पास कोई डाटा नहीं। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी इनब्रेड है। ठीक है, क्यों क्यों इनब्रेड है? क्योंकि अगर तुम ऊपर देखोगे तो ये जो पूरा सेटअप है, ठीक है, जी एच, where G is giving genes to both D and E, H is giving genes to both D and E। ठीक है, और D and E के क्रॉस से भी है B। ठीक है, तो ये जो पूरा सेटअप है इट इज अ काइंड ऑफ फुल सिप। ठीक है, ये फुल सिप मेटिंग वाला सिस्टम। ठीक है, ये जो तुम्हारा पूरा एरोज हैं इट इज जस्ट लाइक फुल सिप। ठीक है, फुल सिप की तरह ही है। एक पेरेंट है, उससे हमारे पास दो इंडिविजुअल मिले, उन दोनों को हमने क्रॉस कराया, हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आ गई। ठीक है, तो दिस इज द फुल सेट। ठीक है, तो अगर हम इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ बी की बात करते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें बी इज इनब्रेड और ये फुल सिप वाला है, ठीक है, और तुम्हें वैल्यू पता है, अभी हमने कैलकुलेट की है कि 1/4 है। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता है तो दैट विल सेव योर टाइम, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है, अभी मैं दोबारा कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि वी हैड ऑलरेडी डिड दिस कैलकुलेशन। ठीक है, तो जैसे हमने उसको किया था इसको हम हाफ से की तरह देख लेंगे, इंडिविजुअल जी और इंडिविजुअल एच के लिए। ठीक है, और इन दोनों का यूज करेंगे हम टू कैलकुलेट द ओवरऑल इनब्रीडिंग वैल्यू ऑफ द बी। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, दैट विल गिव अस द 1/4। ठीक है, और ये जो तुम्हारा सिस्टम है एक्स बी सी, ठीक है, अब बी ये एक्स को भी जीन दे रहा है और बी सी को भी जीन दे रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पेरेंट ऑफस्प्रिंग वाला। ठीक है, कुछ उस तरह का ये, बट जो एग्जांपल हमने की थी उसमें ये जो पेरेंट था, ठीक है, ये इनब्रेड नहीं था, अब ये इनब्रेड है। ठीक है, अगर ये इनब्रेड है तो अब इसको हमने किस तरह से करना है? ठीक है, तो f of the x is equal to half
ठीक है। पेरेंट्स n1 की वैल्यू है 0 क्योंकि, ठीक है, यही तुम्हारा कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, तो n1 0 हो जाएगा, n2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, दिस टू दिस इज द 1। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, here f of the common ancestor, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख देता हूँ, प्लस 1। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी वैल्यू हो गई दैट इज हाफ ए 2 मल्टीप्लाई बाय, अब एफ ए मीन्स ये जो तुम्हारा पेरेंट है इसका कॉमन एंसेस्टर का इनब्रीडिंग वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो हमें पता है कि ये एक फुल सिब है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1 काफी मुश्किल है इसको ऐसे लिखना है यहाँ पे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 4 इज द कॉमन दैट इज 5/4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5/16। ठीक है, इतना ही हो। ठीक है, 1/4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 is 16 and 5 multiplied by 1 is 5। ठीक है, तो 5/16 is the inbreeding coefficient for this individual x। I think it is simple और तुम्हें आइडिया हो गया होगा अब तक कि क्या हमने इस पूरे में किया। ठीक है, just to give very brief about these whole paths and all। ठीक है, मैं वही जो बेसिक रूल्स हैं उनको एक बार थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, in accordance to these examples। ठीक है, आई थिंक तुम्हें थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम सारा डैम को अलग करेंगे। ठीक है, जैसे ये सारा डैम है इनको अलग करेंगे और सारा डैम से पहले हम उसको एस एंड डी दे देंगे, सारा डैम को इंडिविजुअल को एक्स दे देंगे। ठीक है, और सारा और डैम से हम एरो लगा देंगे, सारा और डैम से एरो लग जाएंगे। ठीक है, टू द इंडिविजुअल एक्स। नेक्स्ट इज हमें एंसेस्टर्स को सायर और डैम के साथ कनेक्ट कर देंगे, एंसेस्टर को सायर और डैम के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, किस किस पाथ से, अकॉर्डिंग टू अवर पेडिग्री चार्ट। दिस इज द पेडिग्री चार्ट, दिस इज अवर पाथ डायग्राम। ठीक है, उसके बाद कॉमन एंसेस्टर लोकेट करना है। वो किस तरह से करना है, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिससे 2 एरोस निकले, दैट इज अवर कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, फ्रॉम द पाथ डायग्राम। अगर हम यहाँ से बात करें, वो पर्टिकुलर पेरेंट जो कि 2 के अंदर जीन्स दे रहा है। ठीक है, ए इज बोथ इन ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, सारा डैम के अंदर ए बी बी। ठीक है, यहाँ पे एस इज द कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो तुम्हारा जी एच, ठीक है, और पी, ये 3 कॉमन एंसेस्टर है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही 2 एरोस दे रहे हैं। ठीक है, और किसी के अंदर अगर तुम देखोगे कि सिंगल एरो ही है, फॉरवर्ड सिंगल एरो है। ठीक है, इसमें फॉरवर्ड 2 एरोस। ठीक है, जो 0 वाला था वो ये था, sometimes an individual is considered at its own common ancestor when separated by itself by 0 generation। ठीक है, तो ये जो है this is its own common ancestor। ठीक है, सार अपना ही कॉमन ancestor है। ठीक है, उसके बाद हमने नंबर ऑफ पाथ्स कैलकुलेट करने हैं सार। ठीक है, किस तरह से करने हैं, जो पाथ होंगे हमेशा ही हमने कैलकुलेट करने हैं इन अ वे टू सार
to the common ancestor, ठीक है, to the dam, ठीक है. In this way we calculate the common ancestors, ठीक है. और कॉमन एंसेस्टर कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट है, हम नंबर ऑफ पाथ्स n1 n2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी है, हाफ n बाय n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कितनी है, ठीक है. कॉमन एंसेस्टर जो होगा उसकी क्या है इनब्रीडिंग वैल्यू हमारे पास, जो जैसे मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि फॉर द लास्ट एग्जांपल हमें पता था कि वो एक फुल सिप है, तो हम फुल सिप की वैल्यू हमने सीधे रख दी इसके अंदर, ठीक है. तो उसी तरह से तुम्हें धीरे धीरे अगर तुम सारी पाथ डायग्राम्स को देखोगे तो तुम्हें एक बेसिक्स आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से है, ठीक है. इन दिस वे वी कैन जस्ट कैलकुलेट द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है. यही है, बहुत सिंपल है, ठीक है. और अगर इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर हमने 1/4 देखी, ठीक है, तो 1/4 मीन्स 25%, ठीक है. ठीक है, हमने देखी थी 1/4 वॉज फॉर दीज टू केसेस, फुल सिप मेटिंग एंड साया डॉटर या पेरेंट ऑफ स्प्रिंग. हाफ सिप के केस में इट वॉज 0.125, ठीक है, दैट वॉज द हाफ ऑफ द फुल सिप, ठीक है. तो वो जो वैल्यूज हैं, ठीक है, दैट विल जस्ट टेल अस कि कितना उसके अंदर हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी है टू जीन्स की विच आर आइडेंटिकल बाय डिसेंट, ठीक है. आइडेंटिकल बाय डिसेंट मतलब कितने उसकी जनरेशन से पीछे से आए, ठीक है, जीन्स, ठीक है. सो आई थिंक दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट. In our next topic we'll discuss about the relationship coefficient. Okay, वो भी बिल्कुल सिमिलर सा ही है इसकी तरह, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट का के साथ ही है. अगर तुम्हें इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट का आइडिया हो गया है तो you'll have the idea of this relationship coefficient also, ठीक है, वो मुश्किल नहीं रहेगा. एक चीज है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, एफ एक्स सिग्मा 1/2 n1 प्लस n2 प्लस 1 प्लस एफ सी एफ, ठीक है. कई जगह पे, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा अलग लिखा हुआ है, ठीक है, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज विद इट, ठीक है. 1/2, ठीक है, सिग्मा, ठीक है, 1/2 वैल्यू n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एफ ए, ठीक है. अब n क्या है, n इज n1 प्लस n2, ठीक है, n1 प्लस n2 इज n, ठीक है. और ये जो हमने 1 रखा है और ये हाफ आगे आ गया इसका, ठीक है, यही हाफ आगे, ठीक है. ये जो हाफ है ये हमेशा हमने 1 यहीं पे ऐड कर दिया, कई बुक्स में ये आगे लिखा होता है, ठीक है. दैट इज हाफ सिग्मा हाफ की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एफ, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफ एक्स. कई बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है. बट आई थिंक अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. दैट इज हाफ n1 प्लस n2 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एफ ए सी, ठीक है. जहां पे n1 क्या है, नंबर ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग साया टू द x, n2 इज नंबर ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग डैम टू द x, ठीक है, और 1 इज एक्स्ट्रा, ठीक है. ये जो बुक के अंदर ऐसे आगे लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है. तो दैट इज अप टू यू, जिस तरह से तुम्हें याद करना है, ठीक है, तो तुम वो याद कर सकते हो, ठीक है. तो दैट्स ऑल विद आवर टुडेज लेक्चर. अगर हाँ, एक चीज और है कि अगर हम एफ वैल्यूज देखते हैं, ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग है, ठीक है. पेरेंट ऑफस्प्रिंग की जो एफ वैल्यू है दैट इज 0.25, ये हमने देखी, ठीक है. हाफ सिप की इट इज 0.125, अंकल नीस मेटिंग इट इज
0.125, और तुम्हारी ब्रदर सिस्टर मीटिंग, इसके अंदर भी एफ वैल्यू इट इज 0.25। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो तुम याद कर लेना, अगर तुम्हें पेपर में कोई पूछेगा तो यू कैन जस्ट राइट दैट दीज वैल्यूज। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि तुम्हें इसके बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा, बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी इशू तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी थ्रू दैट। तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे और उसको हम वैसे ही क्लियर आउट कर लेंगे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।